Hello students, now this is our next group, group 17 from P block elements, and this is called fluorine family and also called as halogens. Halo means sea salt and gen means foaming, because sea salt में mostly halides पाए जाते हैं, mostly chlorides and bromides, so these are also called halogens, and the elements are fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. Atomic numbers are 9, starting with fluorine, then add 8, 17, then 2 times 18, 35 and 53, then 32 add, it becomes 85. And electronic configuration of all elements have 2 electrons in s and 5 orbital electrons in p orbital. So general outer shell electronic configuration is ns2 np5, which means 2 and 5 in p with 1 unpaired electron in p orbital. Occurrence: fluorine is found as fluorides in earth crust, for example calcium fluoride or sodium aluminium फेराइड, कैल्शियम फॉस्फेट के साथ कैल्शियम फ्लोराइड, and is also found in bones, teeth and in plants. Chlorine, bromine and iodine are mostly found in the form of metal halides or salts like NaCl, KBr, Ki, etc. Astatine is radioactive and it is found very rarely. Now starting with the properties, atomic, physical and chemical properties. Number 1, atomic properties. इसमें फर्स्ट है atomic and ionic radius. According to general trend, it is smaller than the corresponding elements of group 16 and increases down the group, means fluorine is smallest, then chlorine is larger, then bromine, and largest is iodine. Ionization enthalpy is also having general trend, inversely proportional to size, more than group 16 elements, and decreases down the group due to increase of size. Electronegativity also have general trend, inversely proportional to size, more than group 16 and decreases down the group. So most electronegative is fluorine, then less than fluorine is chlorine, then bromine and then iodine सबसे कम. Halogens are actually most electronegative and fluorine is on number 1 in electronegativity in complete periodic table. Then comes electron gain enthalpy, the amount of energy released when an electron is added in outermost shell, and this is more negative than group 16 elements because halogens attracts electron more and releases more energy, but as we move down the group the tendency to attract electrons decreases and electron gain enthalpy also becomes less negative. But there is exception, like group 16, electron gain enthalpy of chlorine is more negative than fluorine because chlorine has very small size, जिसकी वजह से उसमें हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हैं और जिसकी वजह से एनर्जी रिक्वायर्ड है टू ओवरकम द रिपल्शंस. So some energy get absorbed to overcome the repulsions. So electron gain enthalpy सबसे ज़्यादा क्लोरीन की है, then fluorine, then bromine and then iodine. तो फ्लोरीन की एक्सेप्शन है, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई रिपल्शंस इट रिलीजेस less energy.
Then comes the physical properties. First one, metallic and non-metallic character. All halogens are non-metals and they are highly electronegative, so they attract the electrons. And non-metallic character decreases down the group due to increase of size. Number 2, atomicity. In elementary state, all these halogens exist in diatomic state, form X2 like F2Cl2 Br2 and I2 due to sharing of one electron of p orbital. Melting point and boiling point, it increases down the group because molecular size increase and van der Waals forces also increases. So fluorine is a yellow colored gas, chlorine is a greenish yellow gas, bromine is orange colored liquid with more higher melting boiling point, and iodine is deep violet colored solid, highest melting and boiling point in solid state. So two are gas in X2 form, one is liquid, another is solid, and all are colored. Halogens जो हैं ये colored इसलिए हैं because they can absorb energy from visible region and their electron get excited to higher energy state easily because high electronegativity की वजह से जो different shells हैं halogens में they are very close to each other. So in ground state the electron get excited to higher state easily due to less difference in the energy levels. Then comes solubility of halogens. Halogens are sparingly soluble in water means बहुत ही स्लो solubility के साथ वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, बट हाईली soluble in organic solvent because halogens elementary state में होते हैं नॉन पोलर like this, no special positive or negative charge. Bond energy, जनरली एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है जिसकी वजह से बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज और बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है बिकॉज लार्जर एटम्स का बॉन्ड होता है वीक, सो बॉन्ड एनर्जी ऑल्सो डिक्रीज. बट एक्सेप्शनली द बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन एंड ब्रोमीन ऑल्सो बिकॉज फ्लोरीन में स्मॉल साइज है, अट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं बट हाई रिपल्शंस भी हैं because shells and their electrons are very close and the order becomes highest bond energies of chlorine then bromine, then fluorine is less than chlorine and bromine. Beside it should be on the first position but ये third पे आ गया है due to repulsions in the atoms because of its small size, and iodine is having the lowest bond energy. Now comes the chemical properties. So using the atomic and physical properties we can explain oxidation state. Halogens में वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इन टोटल 2 + 5 = 7. इस एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं नॉर्मल स्टेट में तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1 या +1 डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर और लेस देन द कंबाइनिंग एटम. 0 in elementary state. When an electron excite from this orbital then shows +3. If one more electron excites तो 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाते हैं, shows 5 + 5 और एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हो जाएगा डी ऑर्बिटल के अंदर then shows +7 also. It is shown by all the elements but fluorine cannot show higher oxidation states except -1 and 0 because fluorine do not have d orbitals for excitation of electrons to increase its oxidation number.
सो फ्लोरीन सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा ऑलवेज, या 0 इन एलिमेंट्री स्टेट, कंपाउंड्स में -1। अदर एलिमेंट्स ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाएंगे एक्सेप्ट फ्लोरीन। नाउ कम्स नंबर 2, chemical reactivity. First one is oxidizing property in reactivity. Halogens are very good oxidizing agent because they have electronegativity high and accepts the electrons like this, X2 plus 2 electron form 2x negative. So इनका हो जाता है रिडक्शन, और जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन लेंगे उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन कैन ऑक्सीडाइज अनदर, ये एक दूसरे को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जांपल F2 रिएक्शन करेगा X नेगेटिव से, जिसमें X है ClBr और I, बिकॉज ये इन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये खुद हो जाएगा रिड्यूस F नेगेटिव में, और X नेगेटिव को ऑक्सीडाइज कर देगा X2। सेम वे क्लोरीन और ब्रोमीन भी कर सकते हैं। क्लोरीन करेगा ब्रोमीन आयोडीन को, और ब्रोमीन करेगा सिर्फ आयोडीन को ऑक्सीडाइज। यहाँ पर X नेगेटिव का मतलब है लाइक HX और NaX। सो दीज आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस शोन बाय हेलोजेंस। हेलोजेंस जो हैं दे कैन ऑल्सो ऑक्सीडाइज वाटर, सो दिस इज रिएक्टिविटी टुवार्ड्स वाटर। फॉर एग्जांपल F2 H2O से रिएक्शन करेगा और इससे हाइड्रोजन ले लेगा, तो इसका हो जाएगा रिडक्शन, और H2O का हो गया ऑक्सीडेशन बिकॉज इसमें से रिलीज हो गई हाइड्रोजन। फिर Cl2 से रिएक्शन होगी तो उसमें H ले लेगा, लेकिन एक ही H हो ले पाएगा, और रिमेनिंग OH के साथ एक और Cl, सो हाइपोक्लोरस एसिड, और ब्रोमीन हाइपोब्रोमस और HBr, एंड आयोडीन नो रिएक्शन। सो इट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो फ्लोरीन मोस्टली यहाँ से इलेक्ट्रॉन सारे ले लेगा, और डाउन द ग्रुप आते आते ये रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, टेंडेंसी कम हो जाएगी एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन्स की, और आयोडीन सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग। नाउ कम सेकंड, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, जैसे अदर ग्रुप्स में हमने देखा था। सो ग्रुप 17 एलिमेंट्स ऑल्सो कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स, जिनका फार्मूला होगा HX, बिकॉज H की वैलेंसी 1 है और हेलोजन की भी उसके साथ 1 होगी, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं कर सकता, तो एक ही हाइड्राइड है HX। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स, नंबर 1 इज बॉन्ड स्ट्रेंथ। सो डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें HX बॉन्ड की स्ट्रेंथ की, तो ये स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज। इट मीन्स HF का बॉन्ड है सबसे स्ट्रॉन्ग, और HI का बॉन्ड है सबसे वीक, बिकॉज I का साइज लार्जर है, अट्रैक्शंस वीक हैं, और ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग भी मिनिमम होगा आयोडीन के साथ, और फ्लोरीन में मैक्सिमम। और इसी वजह से रिड्यूसिंग करेक्टर मीन्स टेंडेंसी टू गिव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, वो सबसे ज़्यादा है HI में, बिकॉज इसका बॉन्ड सबसे वीक है, और HF की रिड्यूसिंग पावर होगी सबसे कम। मीन्स हाइड्राइड्स आर रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप लाइक अदर ग्रुप्स 15 and 16, because bond strength decrease and stability also decreases due to weakening of the bond. So hydrogen can be given easily by HI or down the group. Then comes acidic character. This character is also dependent on HX bond. So in aqueous medium, the HX bond breaks easily in HI and most hardly in HF. So acidic strength also increases down the group due to decrease in bond strength. So HF है सबसे
वीक एसिड और HI है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज इट कैन गिव हाइड्रोजन ईजिली ड्यू टू इट्स वीक बॉन्ड. देन कम्स द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. ये इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप बिकॉज मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन साइज एंड van der Waals forces डिपेंड्स ऑन साइज. सो HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे लो होना चाहिए बट HF का सबसे हाईएस्ट है और अदर्स में इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप क्योंकि HF में भी अदर ग्रुप्स की तरह HF दिखाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो HF इज मोर देन HI देन HBr एंड HCl. एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है HF का वो HBr और HCl से ज़्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है. सो HF shows exceptions. Beside its smallest size, it is highest in boiling point and at second position in melting point because HF shows intermolecular hydrogen bond while others shows weak dipole-dipole attractions. And this is one molecule of HF bonded to other molecule of HF by hydrogen bond. And these are 3 molecules. Then comes dipole moment. डाइपोल मोमेंट होता है म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी जिसमें डी है बॉन्ड लेंथ और क्यू है चार्ज. तो चार्ज की वैल्यू हाईएस्ट है फ्लोरीन में, लोवेस्ट है आयोडीन में. सो इसकी वजह से डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और चार्ज जो है वो डिक्रीज करता है. उसकी वजह से पोलैरिटी, आयनिक करैक्टर और डाइपोल मोमेंट जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो ये सब डिक्रीज करते हैं डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो HF की डाइपोल मोमेंट और पोलैरिटी सबसे कम है और HI की सबसे ज़्यादा. देन कम्स नंबर 3 द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ हेलोजन्स जब कंबाइन करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के ऑक्साइड्स बनाते हैं बिकॉज ऑक्सीजन कैन एक्साइट इलेक्ट्रॉन एंड कैन फॉर्म मैनी ऑक्साइड्स इन oxidation states like +1, +3, +5 as well as +7. And as we move down the group the tendency to show higher oxidation state increase करेगी because of decrease in electronegativity. The electrons can be excited easily to higher states. So फ्लोरीन जो है वो 2 ऑक्साइड्स बनाता है OF2 और O2F2 in -1 ऑक्सीडेशन स्टेट और बाकी जो ऑक्साइड्स हैं वो सारे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे. जैसे क्लोरीन का है Cl2O जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन की +1, ClO2 यहाँ पे एक्सेप्शनली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Cl2O6 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और Cl2O7 में +7. ब्रोमीन के ऑक्साइड्स हैं Br2O, BrO2 एंड BrO3 और आयोडीन के स्टेबल ऑक्साइड्स हैं I2O4, I2O5, I2O7 एंड I4O9 जिनके अपने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं विच आर नॉट इन सिलेबस. ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन जो हैं एक्सप्लोसिव हैं बिकॉज ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हेलोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं. सो द बॉन्ड इज़ नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज इट शुड बी. सो क्लोरीन के ऑक्साइड्स ईजिली एक्सप्लोड करते हैं ड्यू टू देयर डिकम्पोजिशन. ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मीन्स वो ऑक्सीडाइज करेंगे अदर्स को. दे आर नॉट एक्सप्लोसिव बट दे कैन गिव देयर ऑक्सीजन टू अदर्स बिकॉज दे आर अनस्टेबल विद ऑक्सीजन. एंड I2O5 को हम यूज़ करते हैं टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो इसको हम यहाँ देख सकते हैं I2O5 की रिएक्शन करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से जो रिलीज़ होता है फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इट फॉर्म्स I2 एंड CO2 जिसमें आयोडीन का एस्टिमेट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन से और फाइनली कार्बन का एस्टिमेट किया जाता है.
डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड जो है प्लूटोनियम के साथ रिएक्शन करके PuF6 कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है और जो कि इजली वेपराइज हो जाता है। सो दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड टू प्यूरिफाई प्लूटोनियम, रेडियोएक्टिव रेयर एलिमेंट। देन कम्स रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस टुवार्ड्स हेलोजेंस, मीन्स एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं ये और हैलाइड्स बनाते हैं खुद के। हेलोजेंस कंबाइंस विद ईच अदर टू फॉर्म 4 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, जिनको बोलते हैं इंटर हेलोजेंस, मीन्स हेलोजेंस के इंटरनल कंपाउंड, जिसमें हमेशा सेंट्रल एटम होता है एक लार्जर हेलोजन और आउटर एटम होता है स्मॉलर हेलोजन। एंड देयर आर 4 कैटेगरीज, X, X-, X, X-3, X, X-5 एंड X, X-7, जिसमें X है लार्जर हेलोजन एटम और X- होता है स्मॉलर हेलोजन एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर है सेंट्रल एटम की, फर्स्ट में +1, सेकंड में है +3, थर्ड में है +5 और फोर्थ में है +7। तो सारी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ये फॉर्म करते हैं, जैसे ClF, BrF, ICl, ClF3, BrF3, ICl3, ClF5, BrF5, IF5, और इसमें सिर्फ एक है IF7 बिकॉज आयोडीन का साइज लार्ज है, तो ये ही 7 फ्लोरीन को, जो कि स्मॉल साइज के होते हैं फ्लोरीन, उसको होल्ड कर सकता है। अदर्स कैन नॉट फॉर्म X, X-7। इंटर हेलोजेंस की प्रिपरेशन हेलोजेंस की एक दूसरे से रिएक्शन करवा के की जाती है, जैसे Cl2 + F2 473 पे फॉर्म करेगा ClF और 573 पे फॉर्म करेगा ClF3। I2Cl2 फॉर्म करेगा पहले ICl और I2 के साथ क्लोरीन एक्सेस में लेंगे तो ICl3, और अदर हैलाइड्स को भी डिफरेंट कंडीशंस टेम्परेचर प्रेशर पर प्रिपेयर किया जा सकता है। प्रॉपर्टीज़, ClF जो है वो गैस है, क्लोरीन फ्लोराइड जो है वो गैस है, इसको छोड़कर ऑल अदर्स जितने भी हैं मोस्टली लिक्विड्स हैं या फिर सम आर सॉलिड्स, लाइक IF7 इज सॉलिड। ऑल आर डायमैग्नेटिक, सभी डायमैग्नेटिक हैं बिकॉज जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे उतने ही हेलोजन कंबाइन कर जाएंगे। एंड रिएक्शंस आर वेरी सिमिलर टू X2, जैसे नॉर्मल हेलोजेंस रिएक्शन करते हैं तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं और हैलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, बट रिएक्टिविटी इनमें ज़्यादा है बिकॉज X, X- में ऑर्बिटल डिफरेंस की वजह से बॉन्ड वीक है एंड दे कैन ब्रेक देयर बॉन्ड एंड रिएक्ट ईजिली, बट लेस रिएक्टिव देन फ्लोरीन बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और बॉन्ड स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है with other elements, so F2 is highly reactive than halogens or interhalogens. Now comes the structures of interhalogens. X, X- में लीनियर है, नॉर्मल है, like X2 means 1X combined with X-. X, X-3 में एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा ग्राउंड स्टेट से और D में चला जाएगा, जिससे एनपीड इलेक्ट्रॉन होंगे 3 और 3 बॉन्ड बनेंगे और हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, जिसके बाद शेप आएगी T शेप बिकॉज 2 होंगे लोन पेयर ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में और 3 होंगे बॉन्ड पेयर विद X-, लाइक ClF3 इज हैविंग T शेप। एंड X, X-5, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से, और हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, जिसमें 5 होंगे बॉन्ड पेयर और एक होगा लोन पेयर। तो sp3d2 की ऑक्टाइडल शेप में से एक पोजीशन पे लोन पेयर आ जाएगा और बाकी 5 पोजीशन पे बॉन्ड पेयर्स, जिसकी वजह से एक स्केयर होगा और उसके ऊपर X, तो शेप का नाम है स्केयर पिरामिडल, फॉर एग्जांपल BrF5। X, X-7 जिसमें ऑल दी 3 इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर्ड हैं एक्साइट होंगे और 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, और साथ के साथ हेलोजेंस शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, जिससे शेप होगी इस तरह से रेगुलर
pentagonal and bipyramidal. Example is IF7. इंटर हेलोजेंस के हम यूजेस की बात करें तो मेनली इनको हम जिनमें फ्लोरीन प्रेजेंट है तो उनको फ्लोरिनेशन के लिए यूज़ करते हैं. सो दीज आर वेरी गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स. फॉर एग्जांपल यूरेनियम ClF3 से मिलकर बनाता है UF6 यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड एंड ClF. और रिएक्शन ऑफ XX-N जो हैं वो X2 की तरह ही हैं, जैसा कि बताया था कि X ऑक्सीडाइज करेगा H2O को एंड फॉर्म्स HX- एंड HOX. मीन्स स्मॉलर X' H+ एक्सेप्ट करेगा और दूसरे के पास जाएगा HOX, और इनको बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स. X3 अगर कंबाइन करता है तो X' को मिलेगा H. सेम वे सभी में X' जो है HX' की फॉर्मेशन करेगा, और रिमेनिंग जो ऑक्सीजन बचेंगे यहाँ पर जितने ज़्यादा हेलोजेंस हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग HXO2 HXO3 HXO4 की फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट X की यहाँ पर है +1, इसमें है +3, इसमें है +5 और इसमें है +7. सो जैसी ऑक्सीडेशन स्टेट है करस्पॉन्डिंगली वैसा ही ऑक्सो एसिड वो फॉर्म करेंगे. सो दीज आर ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस. यहाँ पे फ्लोरीन जो है बस एक रिएक्शन करेगा, बिकॉज ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -1 दिखाएगा, और अदर्स जो हैं +1 से 3, 5, 7 सभी दिखाएंगे और सारे रिएक्शंस करेंगे. बट फ्लोरीन में d ऑर्बिटल एब्सेंट है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा और वो सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन करेगा. एंड एज वी नो वेरी वेल कि हेलोजेंस हैव वेरी हाई रिएक्टिविटी फॉर मेटल्स and combines with metals directly mostly to form ionic and covalent halides. like alkali metals के साथ NaF, KCl, CaBr2, ZnCl2 D ब्लॉक एलिमेंट्स में ये आयनिक हैं, और P ब्लॉक के साथ कंबाइन करते हैं, जैसे ग्रुप 15, 16 में भी हमने देखा था SnCl4 या 13, 14 में PbCl4, PCl3, PCl5 and some D block like UF6 are covalent or sometimes coordinate compounds. So more the positive charge, more is covalent character due to strong attractions of halogens. For example, PCl5 is more covalent than PCl3, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स more covalent character. So in this way we have completed the atomic physical and chemical properties, and next we have to study the compounds of halogens, जिसमें क्लोरीन, HCl और ऑक्सो एसिड्स होते हैं, और इसमें से हम करेंगे क्लोरीन और HCl in next lecture. Thank you.